شہر میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیزی سے جاری ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ 24 گھنٹوں کے دوران اگر بات کی جائے تو مزید 84 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو چکی ہے۔ جی بالکل، ایک شخص جاں بحق ہو گیا ہے۔ 8 روز کے دوران شہر میں ڈینگی سے متاثرہ افراد کی تعداد 529 ہو چکی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ شہر میں ڈینگی کا پھیلاؤ تیز ہو رہا ہے۔ ڈینگی کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اور خطرناک حد تک اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 84 افراد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے اور 2 افراد کے حوالے سے یہ بتایا جا رہا ہے۔ کراچی میں ڈینگی کے کیسز میں مسلسل اضافہ دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ہسپتالوں کی بات کی جائے تو ہسپتالوں میں بھی مریضوں سے جو ہے وہ ہسپتال بھرنا شروع ہو گئی ہیں۔ تاہم شہریوں سے یہی احتیاطی تدابیر بتائی جا رہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ صفائی کا خیال رکھا جائے، پانی جو ہے وہ ضائع نہ کیا جائے اور نہ ہی پانی کہیں کھڑا ہونے دیا جائے۔ شہر میں ڈینگی کیسز میں اضافے کے باعث ٹیسٹ کرنے والی لیبارٹریز میں بھی دباؤ بڑھ گیا ہے۔ ہر لیبارٹری میں روزانہ اوسطاً 100 سے زائد ڈینگی ٹیسٹ ہونے لگے ہیں۔ بات کریں گے واجد رضا اصفہانی سے۔ واجد بتائیے گا اس حوالے سے۔ کراچی میں حالیہ دنوں میں ڈینگی کے کیسز بہت تیزی سے بڑھنے لگے ہیں اور اس وقت بہت سارے لیبارٹری پہ ایک پریشر آ گیا ہے، بہت زیادہ عوام کا رش آ گیا ہے جہاں پہ ڈینگی کی اور CBC ٹیسٹ کی تعداد بھی بڑھ گئی۔ اس پر ہم بات کریں گے۔ ایک لیبارٹری پہ ہم موجود ہیں اور اس کے ڈائریکٹر کرشن ساگر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم پوچھیں گے حالیہ دنوں میں کتنے CBC اور ڈینگی کے کیسز آپ کے سامنے آئے ہیں اور کیا اس کی دن بدن تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے؟ دیکھیں، یہ ہماری JP سٹی اسکین اینڈ ڈائگنوسٹک سینٹر کی چین ہے جہاں آپ آئے ہیں رپورٹ کرنے کے لیے۔ یہ صدر میں واقع ہے IBA کے سامنے۔ یہاں ہم ملٹیپل ڈائگنوسٹک کام کرتے ہیں۔ ابھی حالیہ دنوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس CBC کے ٹیسٹ میں بہت سارا اضافہ ہوا ہے۔ ظاہر ہے یہ سیزنل مچھروں کا سیزن جو آیا ہے اس میں ڈینگی بہت پھیلا ہوا ہے۔ ہمارے پاس پہلے جو اگر CBC سپوز کے طور پہ دن میں 50 ہو رہے تو ابھی 100 سے زیادہ آ رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میگزیمم لوگوں کا جو پلیٹلیٹس کا ریشو ہے وہ 1.5 لاکھ سے بلو جا رہا ہے۔ نارمل 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ ایک ریشو ہوتا ہے، مگر ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی لوگوں کو 1.5 لاکھ سے کم پلیٹلیٹس آتے ہیں، تو ظاہر ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر اس کو دوبارہ جو ہے ڈینگی اور MP پہ ریکمنڈڈ کرتا ہے، جو ریپیٹ ہونے کے لیے ہمارے پاس آتے ہیں ڈینگی کی ٹیسٹ اور اس کا MP کے لیے۔ یہ تھی ایک میڈیکل لیبارٹری جہاں پہ بہت سارے بلڈ ٹیسٹز ہوتے ہیں اور آج کل یہ بتا رہے کرشن ساگر صاحب کہ جو ڈینگی کے کیسز ہیں اس کی ٹیسٹ بہت زیادہ مثبت آ رہے ہیں۔ CBC کے جو ہیں اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پلیٹلیٹس بہت تعداد میں گر رہے ہیں اور لوگ بہت وافر مقدار میں جو ہے کثیر تعداد میں ڈینگی کے ٹیسٹ کرانے بھی آ رہے ہیں۔ بہت شکریہ واجد، آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا۔ کراچی میں ڈینگی وائرس کے پھیلاؤ سے تاجر برادری بھی پریشانی کا شکار ہے۔ کراچی چیمبر کے نائب صدر قاضی زاہد حسین نے صوبائی حکومت سے کراچی کے تمام اضلاع میں بھرپور سپرے مہم کے آغاز کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے حبیب خان سے جو اس وقت کراچی چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں۔ جی رضوان آگاہ کیجیے۔ بالکل، دیکھیں کراچی شہر کے حوالے سے اگر بات کریں تو اس وقت تیزی سے جو بڑھتے کیسز ہیں ڈینگی وائرس کے اور ساتھ ہی ساتھ ملیریا کے، اس پر اس وقت نہ صرف کراچی کے جو شہری ہیں وہ اس وقت جو ہے وہ پریشان ہیں، بلکہ جو کراچی کی تاجر برادری ہے ان کی جانب سے بھی تشویش کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس وقت ہم کراچی چیمبر آف کامرس میں موجود ہیں اور نائب صدر کراچی چیمبر آف کامرس قاضی زاہد حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قاضی صاحب یہ بتائیے گا، اس وقت بڑے تیزی کے ساتھ جو ہے وہ کراچی میں ڈینگی وائرس کے جو کیسز ہیں وہ دیکھنے میں آ رہے ہیں، تو کراچی کی تاجر برادری کا اس پر کیا موقف ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈینگی کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا، سب سے پہلے تو آج ایک ممتاز ماہر تعلیم اور جنہوں نے یونیورسٹی دی اور بڑی خدمات ہیں شعبہ تعلیم کے اندر، عنید لکھانی صاحب، ان کا انتقال بھی ڈینگی کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں، بنیادی بات یہ ہے کہ جو شہر کے اندر جو پچھلے دنوں بارشیں ہوئی ہیں، ابھی بھی کراچی کے بیشتر علاقے ایسے ہیں جہاں پانی ہوا ہے اور نیچرلی اس کی وجہ سے ملیریا بھی پیدا ہو رہا ہے، ملیریا کے کیسز بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں، اور اسی طرح جو ڈینگی کا ہے، میں تو یہ گزارش کروں گا چیف منسٹر سندھ سے اور ارباب اختیارات سے اور خصوصاً وزیر صحت سے کہ وہ خدا کے لیے ڈیزاسٹر کا انتظار نہ کریں، بلکہ پہلے سے شہر کے اندر جو ہے سپرے کا بندوبست کیا جائے اور اس کو سیریس ایشو لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ جو اموات ہیں پھر وہ کووڈ کی طرح جو ہے اس کا نہ ہو۔ تو اس لیے لوگوں کی صحت کے لیے کراچی شہر کو جو ہے وہ صحت مند بنایا جائے اور فوری طور پہ اس پہ سیریس ایکشن لے کے اس کے اوپر سپرے کرایا جائے۔
बिल्कुल कादिर जाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका यही कहना है कि इस वक्त कराची शहर को तवज्जो की ज़रूरत है और बिलखुसूस हुकूमत सिंध से जो है वो ये मुतालबा करते दिखाई दे रहे हैं कि कराची में फ़ौरी तौर पर जो है वो स्प्रे मुहिम का आगाज़ किया जाए, जिससे मलेरिया और डेंगी जो इस वक्त बारिश का पानी जगह जगह मौजूद है उन इलाकों में किया जाए, ताकि जो शहरी इस वक्त जो बड़ी तादाद में डेंगी और मलेरिया के वायरस से जो है वो परेशान हो रहे हैं और बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं, तो उनको जो है वो बचाया जा सके और आगे बड़े किसी जो इसमें जो जिस तरह कोरोना वबा ने पाकिस्तान को और कराची को इफेक्ट किया था उससे बहुत जो है शुक्रिया हबीब अपडेट करने के लिए। डेंगू वायरस के वार तेज होते हैं, शहर कायद में जरासीम कुश स्प्रे की मांग में इजाफा हो गया है। मंजूर कॉलोनी के रिहायशियों ने इंतजामिया की जानिब से स्प्रे ना करवाए जाने पर करीबी दुकानों का रुख कर लिया है। जहां मच्छर जलेबी और दीगर मच्छर मार लवाजमात खरीदे जा रहे हैं। शुएब मुख्तार वहां पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। शुएब बताइएगा। डेंगू के वार के इजाफे के साथ ही मुख्तलिफ जरासीम का स्प्रे की जो है मांग में इजाफा हो गया है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कराची के मंजूर कॉलोनी में एक दुकान पर, जहाँ पर जो है शहरियों की आमद का सिलसिला जो है वो ज़ोर शोर से जारी है। वो स्प्रे ख़रीदने के लिए जो है वो आ रहे हैं ताकि हिफाजती इक़दामात को यकीनी बनाया जा सके। मेरे साथ इस वक्त दुकानदार भी एक मौजूद है, हम इससे बात करेंगे और पूछेंगे कि डेंगू वायरस के फैलाव की इतलात मौसूल होते ही जो है वो शहरी जो है वो किस कदर ये स्प्रे जो है वो ख़रीद रहे हैं। ये इस वक्त जो है ना कराची शहर में पूरे जरासीम से फैला हुआ स्प्रे ना होने की वजह से लोग अब जो है ना किंग टॉक्स कंपनियों वाले स्प्रे लेने पे मजबूर हो गए हैं और पूरे जरासीम से जो है ना बीमारियां फैल चुकी है और पूरे शहर जो है ना मच्छरों और बीमारियों और मलेरिया के डेंगू से बुखार से लोग जो है ना बीमार हो चुके हैं, अस्पताल भरे हुए। कंपनियों वाले के स्प्रे जो है ना वो मांगने में उसकी मांग में ज़्यादा इजाफा हो गया है और सरकारी स्प्रे ना होने की वजह से शहर जो है ना शहर लावारिस बन चुका है। बिल्कुल इनका यही कहना था कि स्प्रे जो है स्प्रे की मांग में जो है वो मुख्तलिफ अमराज फैलते ही जो है वो तेज़ी से इजाफा हो गया है। शहरी यहाँ पर रोज़ाना की बुनियादों पर जो है शहरी का इजाफा जो है वो दुकानों पर देखने में आ रहा है। जी बहुत शुक्रिया शुएब, आपने हमें अपडेट किया। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। समाजी और सियासी रहनुमा हुनैद लाखानी डेंगू से जाँ बहक हो गए। समाजी और सियासी रहनुमा हुसैन लाखानी अस्पताल नाज़िमाबाद में वेंटिलेटर पर थे। उनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए घर पर आमद का सिलसिला जारी है। अब नाजरीन को आगाह कर रहे हैं, समाजी और सियासी रहनुमा हुनैद लाखानी डेंगू से जाँ बहक हो गए। समाजी और सियासी रहनुमा हुसैन लाखानी अस्पताल नाज़िमाबाद में वेंटिलेटर पर थे। इनकी रिहाइशगाह पर ताज़ियत के लिए लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। मज़ीद जानते हैं, हमारे नुमाइंदे आजिज़ जमाली वहाँ पर मौजूद हैं। जी आजिज़, आगाह कीजिएगा कौन कौन आया है मुलाकात के लिए? जी देखिए, इस वक्त मैं लाखानी हाउस के बाहर मौजूद हूँ। आज सुबह ही मारूफ शख्सियत हुसैन लाखानी का इंतकाल हुआ है डेंगू की वजह से। डेंगू का वो निशाना बने थे। इस वक्त मैं अपडेट आपको करूं कि जैसे पहले ऐलान हुआ था कि उनकी नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर अदा की जाएगी, लेकिन अब ये शेड्यूल तब्दील हो चुका है। बताया जा रहा है उनकी फैमिली की तरफ से हमें यहाँ पे कि उनकी 2 बेटियाँ और बेटा बैरून ममालिक में थे, वो अब तक पहुँच नहीं सके हैं, तो इस वजह से नमाज जनाजा का शेड्यूल तब्दील कर दिया गया है और कल अब उनकी नमाज जनाजा होगी यहाँ पे डिफेंस की मस्जिद में बाद नमाज जुमा। और इम्कान ये है कि उनकी जो फैमिली के लोग, उनके जो बच्चे मुल्क से बाहर हैं, वो आज रात तक यहाँ पे कराची पहुँच जाएंगे, जिसकी वजह से ये नमाज जनाजा के शेड्यूल में तब्दीली की गई है। जहाँ तक बात है यहाँ लोगों के पहुँचने की, तो यहाँ वफाकी जो साबिक वफाकी वज़ीर हैं सेनेटर हफीज़ शेख यहाँ पे पहुँचे हैं, साबिक MNA हैं आलमगीर ख़ान वो यहाँ पे आए और दीगर PTI के रहनुमा यहाँ पर पहुँचे हैं। उनकी जस्द खाकी यहाँ पर नहीं है, सर्द खाने में रखी हुई है, तो इस वजह से अभी ताज़ियतों का कोई सिलसिला यहाँ पे शुरू नहीं हुआ है। अलबत्ता यहाँ पे उनके अहले खाना से मिलने के लिए लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके ज़ाती दोस्त यहाँ पे पहुँच रहे हैं हुनैद लाखानी के घर यहाँ पे डिफेंस लाखानी हाउस पे। लेकिन अब हमें ये बताया गया है कि चूँकि ताज़ियती सिलसिला भी कल ही शुरू होगा, जब नमाज जनाजा अदा की जाएगी बाद नमाज जुम्मा कल के दिन। जी अच्छा मुमताज़ जमाली, ये बताइएगा कि उनका जस्ते खाकी घर कब लाया जाएगा, और साथ ही साथ ये बताइएगा कि वो डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला थे, तो क्या उनकी फैमिली या इस इलाके में भी डेंगू फैल रहा है? उनकी फैमिली में भी कोई डेंगू का मरीज़ है?
नहीं, इस तरह की कोई इतला तो नहीं है उनकी फैमिली के हवाले से। अलबत्ता हुनैद लाखानी साहब ख़ुद जो है वो डेंगू के मर्ज़ में मुब्तला थे और हुसैन लाखानी अस्पताल में उनको दाखिल कराया गया था। काफ़ी दिनों से वो ज़ेरे इलाज थे, उनकी हालत ख़राब हो गई तो वेंटिलेटर पे चले गए, आज सुबह उनका इंतकाल हो गया। लेकिन वैसे डेंगू का मसला बहरहाल पूरे कराची में फैला हुआ है। मैं डिफेंस के इलाके में हूँ, यहाँ भी डेंगू का मसला है। स्प्रे यहाँ पर भी नहीं हो रहा। ये कराची का सबसे पोश इलाका है, सबसे बड़ा इलाका है, सबसे अमीर लोगों का इलाका है। यहाँ भी ये मसला मौजूद है कि स्प्रे नहीं हो रहा। यहाँ भी डेंगू के मरीज़ रिपोर्ट हो रहे हैं। जब डिफेंस से हो रहे हैं, इसका मतलब है कि पूरे कराची में इस तरह की सूरत हाल है। और हुनैद लाखानी जैसी शख्सियत जो बहरहाल कराची के एक बड़े मारूफ ताजर भी थे, एक बिजनेसमैन भी थे, कराची के सियासी समाजी रहनुमा भी थे, बैतुल माल के नायब सदर भी थे और बड़ी उनकी जान पहचान थी, लोगों से उठना बैठना था। ऐसे शख्स भी डेंगू की वजह से जांबार ना हो सके तो इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जो गरीब इलाके हैं जहां आम लोग रहते हैं वहां पे क्या हाल होगा। जी बिल्कुल, डीएचए जैसे इलाके में अगर स्प्रे नहीं हो रहा है तो बाकी कराची का होगा, इस बारे में अंदाज़ा लगाना जो है वो मुश्किल नहीं है। बहुत शुक्रिया आजिज़, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं तनख्वाहों की अदम अदायगी पर रेलवे मुलाजमीन सरापा एहतजाज हैं। मुलाजमीन ने आज काम छोड़ हड़ताल कर दी है। मुलाजमीन का कहना है कि आज तनख्वाहें देने का वादा किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर वादा पूरा ना हुआ तो रोड ब्लॉक कर देंगे। मजीद बात करेंगे आदिया नाज से। आदिया, बताइएगा। 6 माह से जो है वो मुश्किलात से दो-चार हैं। उसकी वजह ये है कि हर महीने तनख्वाहों की अदायगी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। इस दफ़ा भी तनख्वाहें जो हैं वो टाइमली नहीं मिली हैं। मुलाजमीन आज प्रोटेस्ट करने पर मजबूर हुए। इनसे आपकी बात कराएंगे, जानेंगे कि क्या वजूहात है, क्या कहना चाहेंगे। जी, क्या कहेंगे आप? मोहम्मद जुनैद अवान, जनरल सेक्रेटरी रेलवे वर्कर यूनियन ओपन लाइन और सीनियर नायब सदर। आज कच्चे जो मुलाजम है हमारे TLA वाले, पैकेज वाले, उनको तो 6 महीने से तनख्वाहें नहीं मिली। पिछली दफ़ा भी और इस दफ़ा भी आज पहली तारीख को जो तनख्वाहें मिलती थी वो नहीं मिली। आज DS ऑफिस के क्लर्कों ने, चपड़ासियों ने, अफसरों के ड्राइवरों ने एहतजाज किया सुबह से काम छोड़, और हम जदोजहद कर रहे हैं। अभी CO से बात हुई है हमारी और अकाउंट के चीफ से बात हुई है। उन्होंने कहा कि आज हम तनख्वाहें भेज देंगे। लेकिन ये मजाक कब तक चलेगा कि मुलाजम जो है वो काम कर रहे हैं और ट्रेनें चलाने के लिए तैयार हैं। आप लोगों की पॉलिसियाँ हैं कि आप नहीं कर रहे, ना सामान दे रहे हैं, ना उसका का मटेरियल दे रहे हैं। आज रेलवे उसका नाम क्या पुल गिर गए, रेलवे लाइनें पानी ले गई, मुल्क में अफरा तफरी है, लोग भूख से मर रहे हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, तो उसके बावजूद तनख्वाहें नहीं मिली। हम इसके इस एहतजाज को बरकरार रखें। कल हम रोडों में जाएंगे, सामने आई चंडीगढ़ रोड पे प्रेस क्लब तक मार्च करेंगे। उसके बाद फिर चक्का तो वैसे ही जाम पड़ा हुआ है। हम चक्का जाम नहीं कर रहे, ये रेलवे की ब्यूरोक्रेसी और हुकूमत चक्का जाम कर रही है। इन्होंने ट्रेनें रोकी हुई हैं और उसका क्या लोग दर बदर स्टेशनों पे मारे मारे फिर रहे हैं। हमारा मुतालबा है कि फौरी तौर पे हमारी पेमटेमी रिलीज़ करो और रिपेयर के नाम पर उसका नाम क्या जो है सामान मटेरियल फराम करो ताकि ट्रेनें चलें और आवाम को जो है सस्ता सफरी सहूलत मिल सके। बिल्कुल, तनख्वाहें ना मिलना एक अलमिया है और ये वो मुलाजमीन हैं जिनके गुजारे घरों के जो पहिए हैं वो इसी तनख्वाहों से चलते हैं। और अगर ट्रेन का पहिया चलेगा तो इनके घर का पहिया चलेगा। और ये मुलाजमीन जो हैं वो आज एहतजाज पर मजबूर हुए। इनका कहना है कि अगर आने वाले दिनों में तनख्वाहें जारी नहीं की जाती तो फिर जो एहतजाज का है एहतजाज का दायरा कार वसी किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आदिया, आपने हमें अपडेट किया। वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गुलशन कैंपस में मुतालबात की मंजूरी के लिए असातिज़ा का एहतजाज जारी है। असातिज़ा की जानिब से क्लासेस का बायकॉट भी किया जा रहा है। गैर तदरीसी अमला भी अंजुमन असातिज़ा के साथ हो गया। ताज़ा तरीन अहवाल जानते हैं हमारे नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं जामिया कराची में मौजूद हूँ और जामिया कराची में अंजुमन असातिज़ा की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है मुनक्किद की गई थी, जिसमें तमाम तर अंजुमन असातिज़ा के जो रुकन हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिरकत की है। इस वक्त मेरे साथ जो हैं अंजुमन असातिज़ा के जो सदर हैं शाह अली उल कदर साहब, इस वक्त मेरे साथ बराह रास्त मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि क्या उनके जायज़ मुतालबात हैं और तदरीसी अमल इस दफ़ा जामिया कराची का क्या रुकेगा, क्या नहीं रुकेगा, इसके हवाले से भी जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। सर ये बताइएगा, क्या आप लोगों के मामलात हैं और सेक्रेटरी बोर्ड और यूनिवर्सिटी की जानिब से अभी तक आप लोगों से कोई इस मौजू पर कोई बातचीत हुई, कोई अमल किया गया? और दूसरा, आप लोग सरापा एहतजाज हैं तो आगे आप लोगों के क्या प्लान है इसके हवाले से? मैं आपको बताऊं, हुआ ये था कि आज से तकरीबन 6 महीने ये हुआ था कि जो है इसी तरह का एक सिलेक्शन बोर्ड होना था जो कि सेक्रेटरी यूनिवर्सिटी बोर्ड ने उसको ख़त्म करवा दिया था।
अब दोबारा मामला ये हुआ कि 6 महीने बाद ये दोबारा होकर उन्होंने एक लेटर भेज दिया है कि कोई भी सिलेक्शन बोर्ड या कोई भी अपॉइंटमेंट, इवन के कॉन्ट्रैक्चुअल या परमानेंट अपॉइंटमेंट भी जो है वो सीएम की मर्ज़ी के बगैर नहीं होगा या सीएम से इजाज़त लेके किया जाएगा। हम ये समझते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो अपनी स्टैट्यूटरी बॉडीज़ से चलती हैं। जब एक बार स्टैट्यूटरी बॉडीज़ मौजूद हैं तो ये फैसले उन्हीं को करने देना चाहिए, क्योंकि ये जो है जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं ये एक्चुअली जो है वो एक्ट के तहत ही काम करती हैं, और वो एक्ट जो है वो यकीन तौर पे सीनियर असेंबली का बनाया हुआ एक्ट है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। यकीनन शाह अली उल कदर साहब इस वक्त हमारे हमरा मौजूद थे। इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक जानिब जो है अंजुमन असातिज़ा वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में सरापा एहतजाज हैं, तो दूसरी जानिब अंजुमन असातिज़ा जो जामे कराची के हैं यहाँ पे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज मुनक्किद हुई, जिसमें इन्होंने अपने तमाम जायज़ मुतालबात जो हैं मीडिया के थ्रू जो है हुक्मरानों तक। बहुत शुक्रिया सैयद ज़ुबैर राशिद अपडेट करने के लिए। लायंस एरिया से मज़ार कायद जाने वाली सड़क टूट फूट का शिकार है और कचरे की अमाज का बन चुकी है। अवाम का कहना है कि तवील अरसे से ये सड़क टूट फूट का शिकार है, जबकि बारिशों के बाद सूरत हाल मजीद अबतर हो चुकी है। बात करेंगे महमूद रियाज से। महमूद बताइएगा। इस वक्त हम जिस सड़क पर मौजूद हैं, इस सड़क के दूसरे सिरे पर अगर हम दिखाएं तो बानिए पाकिस्तान हजरत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आखिरी आराम गाह है, और उनके मज़ार को जाने वाली सड़क का हाल आप देख लें कि कचरा, शहर का तशख़्ख़ुस देख लें, लोग जो है वो परेशानी का शिकार हैं, कचरा भी पड़ा है, सड़क में गड्ढे भी पड़ गए हैं, लोग परेशानी के शिकार हैं। यार ये सड़क तो कायद आज़म मज़ार के साथ जाती है, लोग जाते हैं, आप कितनी मुश्किलात के शिकार हैं? सर ये सड़क गुज़िश्ता 15 से 20 साल से टूट फूट का शिकार है। हर बारिशों में यहाँ पानी जमा होता है, कोई देखने वाला नहीं है। अभी ये के इलेक्ट्रिक का इदारा है, HT वाले, ये लोग गुज़िश्ता 3 महीने से केबल पे काम कर रहे हैं, कोई फाइनल नहीं कर रहे हैं लोग। ठीक है, ये बताएं कि आप इतनी मुश्किल है, ये सरकारी को कचरा कुंडी तो नहीं है, ये 20 सड़क पे, और ये कायद आज़म का मज़ार भी है, इस सड़क का तो बेड़ा गर्क हुआ है, यहाँ कचरा कैसे फेंक रहे हैं? ये आवाम आती जाती जो है ना, जो ऐसे मतलब के रिक्शे में डालते हैं या मोटरसाइकिल पे, देखते हैं आगे पीछे कोई भी नहीं, ठेली फेंकी आगे निकल गए। अच्छा, अब हम बताएं कि आवाम की भी है कि यहाँ पर देखें वो डस्टबिन रखे हुए, 3 जो है वो रखे हुए, लेकिन लोग जाते हुए अपनी गाड़ी से, रिक्शे से कचरा फेंक जाते हैं। यार इधर भाई कोई आवाम को पैगाम दोगे, डब्बे की बजाय यहाँ फेंक के चले जाते हैं, क्या कहो? भाजी यही बोलेंगे अभी डब्बे काय के लिए रखे हुए, कचरे के लिए, कचरे में नहीं डाल, उस डब्बे में नहीं डालते, बाहर डाल देते। तो ये वो कराची की सड़क है, जैसा कि मैंने बताया कि कम से कम इस सड़क को तो एक VIP होना चाहिए, अंदरून मुल्क से भी आने वाला सबसे, अगर कराची के अंदर 2-4 जगह देखता है तो वो ज़रूर कहता है कि कायद आज़म के बाज़ार पे जाना है, और अक्सर आबादी यहीं से गुजर के जाती है, तो वो क्या तशख़्ख़ुस होगा और क्या इस शहर के बारे में अपनी राय रखते होंगे कि यहाँ सड़क, जैसा कि लोगों ने कहा कि 15 साल से टूटी हुई है, और ये देखिए ये यहाँ पर काम जो है ये यकीनन के इलेक्ट्रिक शहर की बेहतरी के लिए काम कर रही है, लेकिन पिछले 3 महीने से जो है वो यहाँ पर ये काम भी चल रहा है, सड़क भी टूटी हुई है, कचरा भी मौजूद है। और अब यहाँ पर ये देखिए कि बिल्कुल अगर आप देखें कि डेड स्लो हो जाता है, और ये मरकज़ी शाहरा है जो आगे जाके मेन MA जिन्ना रोड से मिलती है, तो यहाँ पर लोगों को मुश्किलात का सामना है, तो ये मुश्किलात का सामना है लोगों को। बहुत शुक्रिया महमूद, आपने हमें अपडेट किया। कुछ बात कर लेते हैं लोड शेडिंग के हवाले से। तो लोड शेडिंग से कराची के ताजर बरादरी भी परेशान हो गए हैं। लायंस एरिया सोसाइटी ऑफिस मार्केट में कारोबार के दौरान 7.5 घंटे तक बिजली गायब रहने लगी है। दुकानदारों ने हुकूमत से कि इलेक्ट्रिक को लगाम डालने का मुतालबा किया है। हबीब खान की रिपोर्ट देखिए। शहर में लोड शेडिंग का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मुख्तलिफ इलाकों में 10 घंटे तक लोड शेडिंग जारी है। लायंस एरिया सोसाइटी ऑफिस के साथ मार्केट में कारोबार के दौरान 7.5 घंटे तक बिजली बंद की जाने लगी। दुकानदारों का कहना है कि बिजली की बंदिश से कारोबार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। हजारों रुपए के बिल आ रहे हैं मगर बिजली नहीं आती। गर्म मौसम में न रात को घरों में सोने देते हैं न दिन में सुकून है। के इलेक्ट्रिक से कोई पूछने वाला नहीं है। के इलेक्ट्रिक वालों की 7.5 घंटे की लोड शेडिंग है, 2.5 घंटे की लोड शेडिंग दे रहे हैं ये लोग। बहुत परेशानी है, बच्चे मच्छर काट रहे हैं, बच्चे सो नहीं पा रहे हैं। 8 बजे बंद कर रहे हैं, 1 बजे से ही बाद में लाइट आ रही है। बिल 14,000 15,000 का बिल आ रहा है। 500 600 800 रुपये कमाने वाला बंदा दूध लेके आएगा, क्या बिजली का बिल भरेगा, क्या करेगा बंदा, क्या बच्चों को देखेगा। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, PECHS और डिफेंस में लोड शेडिंग में कमी आ गई है।
तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक लोड में बेहतरी आने पर सार्फिन को रिलीफ के लिए इक़दामात किए जाते हैं। हाई लॉस एरियाज में बिलों की अदम अदायगी पर लोड शेडिंग का दौरानिया ज़्यादा है। कैमरामैन सज्जाद रईस के हमरा हबीब खान, सिटी 21। जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की न्याज हुसैन ने राबिया सिटी में जहनी माजूर बच्चे के साथ बदफेली केस का फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम मुजाहिद को 3 साल कैद की सजा सुनाई है। इसी पर मजीद बात करेंगे हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद हैं। जी मुमताज़, आगाह कीजिए। देखें जी, आज जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की न्याज हुसैन कांधलोकी में माजूर बच्चे के साथ बदफेली करने और बदफेली की नाज़ेबा वीडियो रिकॉर्ड करने से मुतल्लिक मुकदमे की समाअत हुई। अदालत ने मुकदमे का फ़ैसला सुना दी है। अदालत ने मुलजिम मुजाहिद को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी है। साथ ही साथ मुलजिम पर 20,000 रुपये जुर्माना अभी आयद करने का हुक्म दे दिया है। मुलजिम ने 1 जनवरी 2021 को जहनी माजूर बच्चे के साथ बदफेली की थी और बाद में उनकी नाज़ेबा वीडियो रिकॉर्ड की थी, जिस पर मुद्दई मुकदमा की मुद्दयत में थाना इशारा फैसल में ये मुकदमा दर्ज किया गया था। बाद में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार किया था। लिहाजा आज अदालत ने इस मुकदमे का फैसला सुनाते हुए मुलजिम मुजाहिद को 3 साल की सज़ा सुना दी है। जी, बहुत शुक्रिया। जनरल सेक्रेटरी ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट ऑनर्स एसोसिएशन मोहम्मद अवैस चौधरी का कहना है कि सैलाब ने बहुत ज़्यादा तबाही मचाई है। सिंध में नेशनल हाईवे पर 2 हफ्तों से बदतरीन ट्रैफिक जाम है। माल बरदार गाड़ियों की कई किलोमीटर तवील कतारें लगी हुई हैं। उन्होंने कहा कि मोरो से लेकर रानीपुर तक हमारी 200 से ज़ायद गाड़ियाँ उलट चुकी हैं। हुकूमत ने फ़ौरन तवज्जो न दी तो हम एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। जी, इस वक्त पूरे पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टर्स को शदीद मुश्किलात का सामना है। सैलाबी सूरत हाल के बाद इंतज़ामिया की नाअहली की वजह से हमें बहुत मुश्किलात दरपेश हैं। नेशनल हाईवे N5 के ऊपर सिंध में पिछले 15 दिनों से ट्रैफिक जाम है। मोटरवे पुलिस जिसकी ज़िम्मेदारी थी कि वो ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखती, ट्रैफिक की रवानी को बहाल रखती, वो अपनी ज़िम्मेदारी से बिल्कुल भाग चुकी है। मोटरवे पुलिस के साथ साथ सिंध की लोकल इंतज़ामिया की तरफ से भी ट्रांसपोर्टर्स को कोई मदद फराहम नहीं की जा रही और कोई लोकल इदारा, कोई सूबाई हुकूमत ये कोशिश नहीं कर रही कि इस बदतरीन ट्रैफिक जाम से ट्रांसपोर्टर्स को छुटकारा दिलाया जाए। सिंध गवर्नमेंट या जो वफाकी अदारा है NH और मोटरवे पुलिस, ये नहीं इस चीज़ को समझ रहे कि ट्रांसपोर्टर्स को किन मुश्किलात का सामना है। ये नहीं समझ रहे कि हमारा कार्गो ख़राब हो रहा है, फ्रूट ख़राब हो रहे हैं, सब्जियां ख़राब हो रही हैं और इसकी वजह से लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। ट्रांसपोर्टर्स जो पूरे पाकिस्तान में मईशत का पहिया रवां दवां रखने के लिए अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं और हमारी गाड़ियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। हादसात हो रहे हैं रोड ख़राब होने की वजह से और 8-8 दिन 10-10 दिन गाड़ियां रश में फंस के जो सफ़र हमारा 10 घंटे का 15 घंटे का था वो 72 घंटों में और कई जगहों पे तो उसको 4-4 5-5 दिन लग रहे हैं वो सफ़र कंप्लीट करने में। हमारे ट्रांसपोर्टर्स ये सारा कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, इसके बावजूद अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं, नुकसानात बर्दाश्त कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से हमें कोई रिलीफ फराहम नहीं किया जा रहा। हमारी मुश्किलात का कोई अजाला नहीं किया जा रहा। गाड़ियां फंसी हुई हैं, ड्राइवर्स बेचारे परेशान हैं, उन्हें खाने को कुछ मैसर नहीं है, कोई दवा, कोई उन्हें तिब्बी सहूलतें मैसर नहीं हैं, इवन के सिक्योरिटी तक उन्हें प्रोवाइड नहीं की जा रही। आगे बढ़ें, आपको बताएं कि सुई सदर्न गैस कंपनी ने मुख्तलिफ सेक्टर्स को गैस की फराहमी मुअत्तल करने का ऐलान कर दिया। लोड मैनेजमेंट प्लान पर अमल दरामद करते हुए कल से CNG सेक्टर को 3 रोज़ के लिए सप्लाई बंद रहेगी। शहर कायद में गैस का बहरान थम नहीं सका। सुई सदर्न गैस कंपनी ने CNG स्टेशंस को 3 रोज़ के लिए बंद करने का फैसला कर लिया है। SSGC ने CNG स्टेशंस को जुम्मा 9 सितंबर सुबह 8 बजे से पीर 12 सितंबर सुबह 8 बजे तक बंद रखने का ऐलान किया है। SSGC की जानिब से जनरल इंडस्ट्रीज और कैप्चर पावर को भी बंदिश का फैसला कर लिया गया है। इतवार सुबह 8 बजे से अगले 24 घंटे के लिए गैस की तरसील बंद रहेगी। तर्जुमान सुई सदर्न के मुताबिक बंदिश का फैसला घरेलू सार्फिन की गैस की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए किया गया है।